is now being recorded. Yeah, good morning, everyone. In the last few classes, we were discussing the questions based on the formulas so far we have learned in trigonometry. So, a quick glance in just a minute, the most important formulas of trigonometry. I always prefer to begin the class by displaying these formulas so it will become into your memory. So, sine A plus B and sine A minus B, cos A plus B and cos A minus B, tan A plus B and tan A minus B, cot A plus B and cot A minus B. So as mentioned, hardly matters. It's about angles as A and B, or I write them as X and Y. Followed by the following, you can avoid the above formulas, but now 2 sine A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, and 2 sine A sin B. They are important. Then we did learn sin A plus sin B, sin A minus sin B, cos A plus cos B, and the change के साथ cos A minus cos B. The negative sign will be outside. Then followed by the double angle formulas. Cos 2A important. 4 different formulas are there for cos 2A. And using the formula of cos 2A, we had certain deductions like this. Then the triple angle formulas, sin 3A, cos 3A, and tan 3A. These are the minimum number of formulas which actually we need. Now consider the questions based on this. Yeah. For this particular question, I need to talk about one basic concept, very simple. So check it out. Tan x is given as 3 by 4 and a quadrant is given. Pi by 4 is less than x is less than 3 pi by 2. Which quadrant x belongs to? Anyone? Which quadrant is this? Pi say 3 pi by 2 tak. That is which quadrant? Third. A third quadrant, 180 degrees and 270 degrees. Yes. So up we need to find sine x by 2, cos x by 2, and tan x by 2. So I'm giving you the way how you get the formulas for these three. So sin x by 2, how I'm going to derive such formulas? तो उसके लिए सबसे पहले think about cos 2a, that is 2 cos square a minus 1, and this would give me cos square a as 1 plus cos 2a divide by 2, or this would give me cos a as plus minus under the root 1 plus cos 2a divided by 2. Now if cos a is now given by this formula, check it out in my formula list. I have written this formula separately because this is important. We are going to make use of this many a times. Now from this formula, replace a by 2, half the angle. So what will happen? If I half the angle, cos a by 2 would become plus minus only half the angle. So 1 plus 2a का half माने only cos a आ जाएगा. Numerical value will still remains the same, and we get the formula for cos a by 2. Learn this separately. तो ये जो आपका फॉर्मूला डिडक्शन करके आया है, this is very very important. Similarly, now I am taking the direct formulas and say this is 1 minus 2 sine square a. This is a non-formula.
When I use all these things, I will get the formula for sine a by 2, and that would be plus minus under the root 1 minus cos a by 2. That will be the only difference that you can easily observe. So make a note of this another formula which we'll be using again and again. Now when I divide these two formulas, सिंपल लॉजिक की बात कर रहा हूं, डिवाइड कर दो इन दोनों फार्मूलाज को, तो साइन को पहले लिख दो, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, साइन ए बाय 2 अपॉन कॉस ए बाय 2, एंड दैट वुड बी प्लस माइनस तो दोनों से, और ध्यान से सोचेंगे तो दोनों का 2 से 2 कैंसिल, एंड इट विल बी 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, दैट इज LHS आ चुका है tan a by 2. So tan a by 2 has got this formula. Again, it is recommended you learn it. Correct है, बहुत important है. So इस फॉर्म में इसे भी आप नोट कर लीजिए. Now the only final concern would be that whether my answer will be plus or minus, because this is showing plus and minus, but at the same time tan a by 2 cannot be both say plus and minus, so it will depends on this quadrant, right? अब quadrant के ऊपर depend करेगा x के ऊपर कि x by 2 का क्या behavior होगा. तो उस केस में क्योंकि मैंने फॉर्मूला एंगल एक ही टर्म में लिखे हैं, तो लेट मी नाउ कंसीडर माय ऑल द रूल्स फॉर इन टर्म्स ऑफ एंगल ए. अब आप चेक करिए केस 1, एंगल जो ए है दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 to pi by 2, that is first quadrant. Think logically what will happen. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया, बट आई वॉन्ट a by 2. a by 2 का मतलब डिवाइड बाई 2, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा. और व्हाट डज दैट मीन, किस क्वाड्रेंट में आ गया a by 2? एनीवन, व्हिच क्वाड्रेंट इज इट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो आपको एग्जाम वगैरह में ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या समझना है यहाँ से, what I have actually focused on. If A is in first quadrant, then we have noted A by 2 lies in the first quadrant again. Will the similar rule applicable for जब हम बात करेंगे second quadrant, third quadrant and so on? So let's quickly check out for case 2. अब हम लेते हैं A belongs to say second quadrant. Second quadrant का मतलब ये हो गया, that is second quadrant. Now obviously इसका मतलब है pi by 2 से लेकर it's in limit. आपको a by 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. So what is the answer? a by 2 lies in which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट. Note carefully again, this is referring to 45 degrees and 90 degrees. So again it lies in the first quadrant only. So simple rule, A is in second quadrant, A by 2 will still lies in the first quadrant. Same way we can talk about case 3 and case 4. Case 3 मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, if A lies in third quadrant, then A by 2 lies in, any guesswork, quick guesswork? करके देख लीजिए. सेकेंड क्वाड्रेंट. A by 2 lies in second quadrant. And what about the final case, fourth quadrant?
is in the fourth quadrant and a by 2 lies in quadrant. Please mute yourself. आप चेक करिए, इट विल बी अगेन दी सेकेंड क्वाड्रेंट. कई बार एक क्या गैस वर्क हमें लगता है ऐसे कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में था ए, तो ए बाई 2 फर्स्ट में आ गया, एक पीछे हो गया. ए थर्ड में है तो ए बाई 2 हमने देखा सेकेंड में, फिर एक पीछे हो गया. तो एक ब्लाइंड गेस यही कहता है कि अगर ए फोर्थ में है तो ए बाई 2 मस्ट बी इन दी third quadrant, but this is actually not the case. So that I leave it to you in your homework to check it out. Hardly it will take 10 seconds to go about it. So सोच के देखना. So आपको अल्टीमेटली ये याद होना चाहिए. और इसका बेनिफिट कहाँ है? In these three formulas. क्योंकि हम यहाँ हाफ एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब वो प्लस आएगा या माइनस, वो हम इस रूल से डिसाइड करने वाले हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड मार्क योर अटेंडेंस. Mark your attendance quickly. And what is the purpose of this rule which I have just shown? Like we have a question example 28. अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. I have already copied the same question on my next sheet. Check this out. Tan x by 2 given है and x lies in the third quadrant. ये भी हम देख चुके हैं. x is in the third quadrant and ultimately I need sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. तो अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x by 2 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? That we already have seen, सेकेंड क्वाड्रेंट. तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ साइन और कॉसेक का होता है. दे आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल अदर टी फंक्शंस आर नेगेटिव. अब आप चेक करिए फॉर्मूलाज मुझे पता है क्या क्या है. फॉर्मूला साइन एक्स बाई 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2. कॉस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x by 2 and tan x by 2 is the division of both. That would be 1 minus cos x upon 1 plus cos x. You can be sure, एक बार चेक कर लीजिए जो मैंने फॉर्मूलाज लास्ट पेज पे बताए थे, डराइव भी करवाया था. बट अल्टीमेटली यू नीड टू लर्न देम. सो क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप ये डायरेक्ट लिख पाए. What is the common observation if I look at all these three formulas? I only need the value of cos x. Once I have the value of cos x with me, I can get all these three values. तो अब मेरा एम सिर्फ है getting the value of cos x. अब वो कैसे निकालेंगे? tan x मुझे गिवन है, राइट. x ऑलरेडी मुझे पता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट. वी स्टार्टेड विद दिस आइडिया ओनली कि अगर x tan x गिवन है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो मुझे वो ऑल 5 नहीं चाहिए. आई नीड ओनली cos x.
तो check it out. Cos x निकालने के लिए one of the possible way could be, we know 1 plus tan square x is secant square x. This is our known formula. Put the values. So 1 plus 3 by 4 का whole square is secant square x. This would give me secant square x as 1 plus 9 by 16, which is 25 by 16. Taking square root both the side, secant x आ जाएगा plus minus 5 by 4, और इसका रेसिप्रोकल करते ही I will get cos x. But at the same time एक चीज याद रखिए, x किस क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि वो tan का है। तो cos x की वैल्यू -4/5 आई है। छोटी सी गलती क्या हो जाती है, हम cos x 4/5 ले लिया, बट दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट माई होल आंसर। सोच के देखिए, अब जैसे ही मेरे पास cos x की वैल्यू आ गई, आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, और याद रखिए अब मैं बात कर रहा हूं x/2 की, और x/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, एंड tan नेगेटिव होता है। तो ये प्लस माइनस में से डिसाइड कर लिया कि कौन सा साइन आने वाला है, एंड देन substitute the value of cos x, which is -4/5. cos x की सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं। Take the LCM and simplify. You will get your required values. रूट की टर्म में ही छोड़ेंगे, of course you will not solve that further. सोचिए इसे ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट गलती यही फार्मूला याद नहीं है, ये प्लस माइनस का कंसेप्ट में हो जाती है। You can always ask if anything is not clear. Based on this same idea, we have the questions from NCERT miscellaneous. I'm not solving these questions, so check this out. ये NCERT miscellaneous का यही है, sin x/2, cos x/2 and tan x/2 निकालना है। tan x गिवन है, इन द लास्ट क्वेश्चन वहां भी हमें tan x गिवन था, राइट? और क्वाड्रेंट सेकंड है x, तो आपको पता है x/2 विल बी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। नाइन्थ क्वेश्चन और इजी हो गया, क्योंकि यहां ऑलरेडी मुझे cos x गिवन है। याद रखिए फार्मूला में cos x इन्वॉल्व होता है, तो मुझे यहां तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो नाइन्थ बिकम्स मच इजियर। So attempt that both the parts in your homework. Now consider this question. You have to prove this result. Cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is 3/2. Of course, we'll be beginning with LHS. Cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3. The most important step
और वो ये है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2। द होल क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला। यहाँ पावर्स इन्वॉल्व हैं, देयरफॉर आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे इन जर्नल अगर आप सोचेंगे। एक और ऑल्टरनेटिव है जो मैं बताऊंगा, बट दैट इज एक्चुअली वेरी लेंथी। तो इजी वे यही है। ये फार्मूला ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अब पावर को हटा रहा हूं, तो मतलब फर्स्ट तो सिंपल है, डायरेक्ट यही टर्म आ जाएगी 1 प्लस cos 2x बाय 2 प्लस, लुक एट द सेकेंड फार्मूला। आप सिर्फ x को रिप्लेस कर दो x प्लस पाई बाय 3, both the sides in the formula. So what I am going to get 1 plus cos 2 times x plus pi by 3 by 2। क्या कहा था? एंगल को x को x प्लस पाई बाय 3 लिख दीजिए। तो एंगल जहां मेरा इन्वॉल्व हुआ था x, उसे x प्लस पाई बाय 3 कर दिया। सेम वे थर्ड वाले को ध्यान से अब तो समझ आ चुका होगा। दिस इज 1 प्लस कॉस 2 इंटू एंगल को x की जगह x माइनस पाई बाय 3 कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 2। Your 25% of the question is done, and that is the base and the most important step actually. तो मेक इट श्योर ये पहला स्टेप समझ आ गया है, सेकंड और थर्ड टर्म कैसे लिखी है। नाउ लुक केयरफुली, तीनों टर्म्स में ये अगर मैं एलसीएम लेता हूं एक साथ तीनों टर्म्स, इट विल बी 2 कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहां क्या बचेगा? लाइक टर्म्स को एक साथ करें, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया ये अलग से। और प्लस में क्या बचा? कॉस वाली टर्म्स एक साथ कर दो। ये चलो मैं 2x प्लस 2 पाई बाय 3 लिख देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये एंगल पूरा, और इधर cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3। नोट केयरफुली, लुक एट द सिमेट्री। सिमेट्री यहां है, और फिर मुझे एक सिमेट्री से एक फार्मूला याद आ रहा है इसे देखकर, cos a प्लस cos b। cos a plus cos b is given by 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। Means I am going to consider this whole as a and this whole angle as b and use the formula। तो check it out, क्या हो जाएगा? ये हाफ और ये 3 प्लस तो एज इट इज, cos 2x एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में फॉर्मूला लगाते हैं, तो चेक इट आउट, ये क्या दे देगा? 2, ये है cos a प्लस cos b, ये वाला फॉर्मूला लगाया, 2 cos a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2। डू नॉट फॉरगेट द फॉर्मूला, ये है। तो ये भी सिर्फ मैंने पहली टर्म लिखी है ये वाली, cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट टर्म क्या है? cos a माइनस b। तो a और माइनस जब मैं करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2।
चेक इट आउट, यहाँ ये 2/3 से 2π/3 ये कैंसल, और यहाँ ये 2x से 2x कैंसल हो गया. Let me simplify this. So that would now become half of 3 plus cos 2x as it is, plus 2 times. What is this I am getting? ध्यान से देखिए, 2x plus 2x 4x, 4x by 2, 2x आ गया, इंटू नेक्स्ट क्या बचा, 2π/3 plus 2π/3 4π/3, और इसका हाफ हो रहा है, दैट इज 2π/3. नेक्स्ट एक छोटी सी चीज याद दिलवाता हूं, cos 2π/3 is your standard angle. I can write this as pi minus π/3. This is the even multiple of π/2. तो cos का cos ही रहेगा, और क्योंकि ये लाई कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. तो ये तो बेसिक फंडामेंटल मैंने यूज किया, और दिस इज -1/2. तो cos 2π/3 की वैल्यू एक्चुअली cos 120 डिग्रीज है, तो याद हो जाती है -12. तो लेट मी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हेयर, और बाकी सब कुछ एज इट इज, बट चेक इट आउट के व्हाट विल हैपन. ये मैंने लास्ट वैल्यू पुट कर दी -1/2. नोट केयरफुली, ये 2 से 2 कैंसल, और ये दोनों टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखें, cos 2x minus cos 2x, they will also get cancelled out. cos 2x से ये cos 2x कैंसल, सिर्फ क्या बच गया मेरे पास फाइनली, इक्वल टू 3/2. ये 3 and by 2 equals RHS, hence proved. वेरी 2 सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ऐसा ही असाइनमेंट में है cos स्क्वायर की टर्म में ही, एंगल सेकंड और थर्ड में थोड़े से डिफरेंट दिए होंगे, और असाइनमेंट में एक और क्वेश्चन साइन स्क्वायर की टर्म में. तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सोचना होगा, फॉलोड बाय द एग्जैक्टली सिमिलर अप्रोच. एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, पैरेलली 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही आपके सॉल्व हो जाते हैं, प्रोवाइडेड you know the rule, you know the formulas and how to use them. Just by mere ratification, rutlo formulas, but you do not know how to apply them, again that will serve no purpose at all. तो कब कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है, that comes only using your wisdom with your practice actually. No shortcut, no other way. No one can teach you anything unless you practice the most. Please make a note of it. Though PDF will be shared with you, and do complete your work in the register and submit your work. Chapter 1 and 2 तक तो minimum अब तक हो जाना चाहिए था, and even till date only 20% of the students has submitted their work. If you have your seniors in 12th class, talk to them. उनका बोर्ड का रिजल्ट जो चाहते थे वो नहीं आया है, जो एक्सपेक्टेड था, जो उन्हें लग रहा था कि आएगा, वो नहीं है. I have the proofs for that, कि what is the reason of deducting the marks. कंप्लीट पूरे साल का डाटा मेरे पास है अवेलेबल. I think I have shown you my classroom. तो हर चीज मेरे पास है, अटेंडेंस से लेकर
आपकी इन्वॉल्वमेंट, कब आपने प्रेजेंट ऐप मार्क करा है, कब आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है चैट बॉक्स में, कब आपने कुछ पूछा है, और मेन चीज क्लासरूम में आपने कब अपना होमवर्क सबमिट किया है। कोई आपको होमवर्क जितने भी दिए गए तो वो विद डेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद मी। Check out the NCRT miscellaneous exercise. In general, the questions are very simple. अगर मैं NCRT की एटलीस्ट बात करूं, क्योंकि आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कंसीडर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट। चेक दिस आउट। यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। These angles, ये 13 है नीचे, so they are not our standard values. So how I am going to start? Consider LHS. लुक केयरफुली, इन दोनों टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट है, एंगल्स के बीच में, और बाद वाले दोनों प्लस में लिखे हुए हैं। अगेन द मेथड मे नॉट बी यूनिक, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज another alternative method. I am following the one simpler one. Look at this term, 2 cos A cos B. अब जैसे ही मैंने ये बोला तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? व्हाट इज द फॉर्मूला 2 cos A cos B का? एनीवन? This is the formula for 2 cos A cos B. So when I apply this particular formula, this is my A and this is B. So this will become cos A plus B plus cos A minus B. एंड बाद वाली दोनों टर्म्स एज इट इज कॉपी करेंगे, प्लस cos 3 pi/13 प्लस में cos 5 pi/13। दिस इज cos, एलसीएम लेकर वह सिंपल आ गया, ये तो 13 इज एलसीएम, सो 10 pi/13 प्लस cos आएगा तो ये -8 pi/13, ठीक है। बट क्योंकि cos ऑफ -x होता है cos x, सो यूजिंग दिस ये प्लस में ही लिख दिया, और बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज, लास्ट वाली। नाउ देयर इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन इज I can write this as pi minus 3 pi/13। एक बार जरा एलसीएम लेकर देखना यहां पर, रिवर्स थिंकिंग, प्लस नेक्स्ट को मैं पाई माइनस 5 pi/13 लिख सकता हूं। टेक द एलसीएम अगेन एंड चेक दिस आउट। Last two terms copy it as it is. What is the first value? Check this out. This is second quadrant, पाई माइनस में लिखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा। Look at the second value, again the same rule, और ये माइनस में आ जाएगा, and copy this value and the next value as it is.
So we have a simple observation. 3 pi/13 पॉजिटिव नेगेटिव वाली टर्म्स ये कैंसल हो गई और ये आपस में कैंसल हो गई, जस्ट साइन ही तो डिफरेंट थे इनके, सो दैट दिस इज इक्वल टू 0 equals RHS, hence proved. पॉसिबली आप इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली शायद कैसे सोच सकते थे, आप इसे और इसे कंबाइन कर देते एंड देन यू कुड हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ cos A प्लस cos B. तो दैट ऑल ऑन यू, किस तरह से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहते हैं. टू माई नॉलेज दिस इज द इजियर वन. कोई और देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं बाद वाले में cos A प्लस cos B लगा लेता. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल. ट्राई आउट इन योर होमवर्क, डू नॉट गो बाय माई वर्ड्स. एक्सपेरिमेंट करिए, चेक इट आउट, यूज सम ऑल्टरनेटिव थिंकिंग प्रोसेस. बट इफ द मेथड एंड कॉन्सेप्ट इज ओके, यही आंसर आएगा. फाइनली क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने हैं. थर्ड एंड फोर्थ इन योर होमवर्क, फॉलोड बाय these two questions again. यहाँ तो ब्रैकेट बना ही दिए हैं और सिंपल कर दिया है, तो डायरेक्ट फार्मूलाज को ही यूज करना है. यस, तो यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा और यू विल फाइंड एनसीईआरटी हमारी हो चुकी है, राइट जितना हमें कवर करना है फ्रॉम एनसीईआरटी. यहाँ से अब जो मैं नेक्स्ट बात करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में से पिक करे गए हैं. Mark your attendance quickly now. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, thank you. Good day. Thank you, sir. Yeah, thank you. चलिए जल्दी से अटेंडेंस मार्क करिए एंड देन यू कैन लीव द क्लास. Yes, do it fast. Leave it now. आतिफ, धीरेन, भावेश, आशीष, कार्तिक, निष्ठा.